एवरीवन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बिहाफ पर मैं और मेरी एक्सपर्ट्स की टीम कल्पना देवनाथ मैम, जसबीर बाबरा मैम एंड वर्षा उपाध्याय मैम, आप सभी का हमारे सेकंड सेशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी कल्पना देवनाथ मैम को। लास्ट सेशन में कोई तकनीकी कारणों की वजह से वो हमारे साथ बात नहीं कर पाई थी, लेकिन हम बहुत उत्सुक है उनके जो वर्ड्स है, उनके जो मोटिवेशनल वर्ड्स है सुनने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट कल्पना देवनाथ मैम कि प्लीज आप एड्रेस करें बच्चों को। Can you hear me now? Yes ma'am. Yes ma'am. Good morning to everyone. Good morning ma'am. Pathania Aini, dear Dr. Pathania ji, my dear Pooja, all expert coaches, I am very grateful to you for giving me an honor to share my views on the organization of grassroots level rhythmic gymnastic fitness program during lockdown period. This is a great initiative taken by the Sports Authority of India to start this Khelo India e-Pathshala to continue gymnastic training during lockdown, when the gymnasts are not permitted to go to their training center to continue their training. This online gymnastic education and coaching program will be very helpful to the gymnasts to keep themselves fit. The teaching of this basic and fundamental movement and body preparation movement will definitely helpful to the beginners and grassroots level gymnasts to form a solid base for future high international performance. My suggestion to the young gymnasts is to please take up this online fitness program seriously and also follow the instruction very carefully so that you can perform a correct movement, learn the correct movement. Otherwise, it will be very difficult for the coaches to rectify the mistakes if you learn wrong movement. And the most important thing, you must enjoy the training session. Once again, I extend my sincere thanks to Director General Sports Authority of India to arrange such an excellent training program for the gymnasts during lockdown. Last but not least, I wish everyone very good luck and stay safe, fit and healthy. Thanks everyone. Thank you very much. Thank you ma'am. Thank you For ma'am. your such inspirational words. Welcome. बच्चों, कल्पना मैम अर्जुन अवार्डी है हमारी कंट्री की. शी इज एन इंटरनेशनल जज, शी इज कोच एंड शी हैज experience of more than 35 years in this field of gymnastics. So we are very lucky to listen such inspirational words from her. Once again, thank you. So moving forward, हमने लास्ट सेशन में हमारे वार्म अप के हर एक एक्सरसाइज को सीखा था. एक सेपरेट एक्सरसाइजेस हमने लिए, हमने उसके टेक्निक सीखे, प्रोसीजर सीखे. तो आज हम उन्हीं एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके हमारे वार्म अप सेशन करेंगे. उस एक्सरसाइजेस में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, एक के बाद एक हम एक्सरसाइज करते रहेंगे. हमारे पास हमारी डेमोन्स्ट्रेटर है संयुक्ता काले. शी इज जूनियर एशियन चैंपियनशिप्स फाइनलिस्ट ऑफ आवर कंट्री. आई रिक्वेस्ट निकिता मैम के संयुक्ता जी को स्पॉटलाइट पे ले लीजिए. थैंक यू. So Sayukta, let's start with running. Gymnast, please get up. Everyone, आज हम इस तरीके से रनिंग करेंगे कि मेरे फर्स्ट काउंट पे आप रनिंग शुरू करेंगे और मेरे सेकंड काउंट पे जब मैं 2 बोलूंगी तब आप नीचे बैठ जाएंगे फर्श पे. संयुक्ता, कैन यू शो कैसे बैठेंगे हम लोग नीचे? इस तरीके से हम बैठ जाएंगे, ठीक है?
Stand up, everyone. Ready, gymnast? And begin. 1. Run, 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 run. Come on, come on. And 2. Sit immediately. Immediately have to sit, okay? And 1. Two. And 1. And 2. And 1. 2. 1. And 1. 1 is running. Come on, don't sit. Very good, very good. And stop. Stop, stop, stop. Okay, so now let's start our warm up. Let's start with the music. Gymnast, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके हाथ, आपके पैर, आपकी बॉडी की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए. लास्ट क्लास में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया था. हमारे फर्स्ट और सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस को शोल्डर के जितना हम पैरों को रखेंगे, हमारे पैर का जो डिस्टेंस है दैट विल बी शोल्डर डिस्टेंस. हमारे हाथ हमारे वेस्ट पे रहेंगे, हम बिल्कुल सामने देखेंगे, हमारा हेड न्यूट्रल पोजीशन पे होगा और बॉडी बिल्कुल सीधी होगी, ना आगे झुकेगी ना पीछे और ना साइड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस विथ म्यूजिक. Danny, please start. Neck up and down. शोल्डर्स पे ध्यान दीजिए, श्रग नहीं होने चाहिए. Keep your arms stretched. 5, 6, 7, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 1, 2, 3, 4,
Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, बहुत अच्छा चल रहा है जिमनास्ट, वेरी गुड, कीप इट अप। हाथ की कोहनियों को सीधा रखिए। 8. वेरी गुड जिमनास्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। साइड लेंजिंग भी ठीक से करो, छोटे बच्चे हेल्प ले सकते हैं चेयर की। 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एल्बो सीधे रखिए।
वेरी गुड जिमनास्ट, हमने बहुत अच्छी तरीके से आज वार्म अप किया है, आपकी बॉडी वार्म हो चुकी है। अब हम हमारे सेकंड टॉपिक पे जाएंगे आज के, जो है टोज। बच्चों, टोज रिदमिक जिम्नास्टिक्स में लगभग हर एक स्किल हमारे टो पॉइंट्स के साथ की जाती है और टोज का बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है रिदमिक जिम्नास्टिक्स में। हमारे जो टोज है वो शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसकी वजह से हमारे जिम्नास्टिक्स के जितने भी स्किल्स है उसको एक सौंदर्यपूर्ण एस्थेटिक और टेक्निकल परफेक्शन मिलता है। हम एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी, एंकल की स्ट्रेंथ, टोज की फ्लेक्सिबिलिटी, इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे आज। और इसकी शुरुआत हम पहले करेंगे आपको पहचान करा के कि आपका फुट किस तरीके से आप पहचान सकते हो। संयुक्ता, मैं आपको आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हम हमारे फुट के मतलब एंकल के फ्रंट पार्ट को दिखाना चाहेंगे, तो क्या आप दिखा सकते हैं बच्चों को एंकल का फ्रंट पार्ट क्या होता है? बच्चों, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर एंकल। ये आपके फुट का एंकल का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दूसरे है आपके टोज। संयुक्ता, टोज को हाथ लगा के दिखाइए प्लीज। यस, आपके टोज। तो जब हम पॉइंट्स करते हैं तो ये दो हिस्से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये जानना जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि रिदमिक जिम्नास्टिक्स में हर एक रूटीन, हर एक स्किल टोज पे किस तरीके से की जाती है। एक स्मॉल वीडियो है एक जिम्नास्ट का, आप उसके ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरीके से जिम्नास्ट ने अपने स्किल्स में टोज का यूज किया है। ये कोई और नहीं, हमारी वर्ल्ड चैंपियन याना कुदरतसेवा होगी। आप उनके टोज पे ध्यान देंगे पूरे रूटीन में।
तो आपने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से जिमनास्ट याना कुदरत सेवा ने अपने टोज का इस्तेमाल किया पूरे रूटीन में, और उस वजह से उनके पूरे रूटीन में हमें एक एस्थेटिक, एक सौंदर्य दिखा, एक टेक्निकल परफेक्शन दिखा। उनके जंप्स, उनके बैलेंसेस, उनके जो पिवट्स है, रोटेशंस है, वो सारे के सारे रिदमिक जिम्नास्टिक्स पे टोज के ऊपर ही होते हैं, और इसीलिए टोज एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है हमारे रिदमिक जिम्नास्टिक्स का। तो हम शुरू करते हैं इस टोज के प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले हमारे जो एंकल के आजू बाजू के लिगामेंट्स और मसल्स है, उन्हें हम स्ट्रेच करके लेंगे। यस, वेरी गुड। तो हम शुरू करेंगे हील वॉक। ठीक है, हील वॉक से संयुक्ता आप अपने एड़ियों पे खड़े रहिए और हील वॉक करके दिखाएंगे एक बार। यस, यहाँ पर आपके सिर्फ हील्स लगेंगे नीचे, टोज ऊपर होंगे, और आपके घुटने बहुत सीधे रहेंगे, घुटने बेंड नहीं होंगे। इससे आपके एंकल्स का जो पिछला हिस्सा है वो स्ट्रेच होगा। 8 काउंट्स के लिए करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थैंक यू। अब हम हमारे एंकल्स के साइड के हिस्सों को स्ट्रेच करके लेंगे। संयुक्ता आप आउटर साइड ब्लेड्स दिखा दीजिए एक बार। यस, आउटर ब्लेड्स ऑफ योर फुट। ठीक है, उसके ऊपर हम चलेंगे अभी। संयुक्ता फ्रंट प्रोफाइल के साथ एक बार चल के दिखाएंगे प्लीज। थैंक यू। यस बच्चों, चलिए आप भी, आपके हाथ कमर पे रख के, घुटने सीधे रख के चलिए, बिल्कुल भी। 8 काउंट्स के लिए हम चलेंगे। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वेरी गुड। अब हम हमारे फुट के इनसाइड वाले पार्ट पे, मतलब इनसाइड ब्लेड्स, इसके ऊपर चलेंगे ताकि हमारा इनसाइड जो भी एंकल का हिस्सा है वो स्ट्रेच हो जाए। संयुक्ता, यस, वॉक प्लीज। वेरी गुड। जिमनास्ट, हाथ कमर पे रख के चलिए। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वेरी गुड। अब हम जाएंगे हमारे फुट के एंकल के सामने वाले हिस्से को स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, किस तरीके से स्ट्रेच करेंगे संयुक्ता? आप अपने एंकल के सामने वाले हिस्से को स्ट्रेच करके दिखाएंगे एक बार। आपको आपके जो हील है वो आगे पुश करने हैं। ठीक है, हील को आगे पुश करना है। अगर आप अपने हील को आगे पुश नहीं करेंगे पूरी तरीके से तो वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से अभी संयुक्ता की एडी नीचे है, तो इस तरीके से आपका फुट स्ट्रेच नहीं हो रहा है। आपको आपके हील को आगे की तरफ पुश करना है। यस, ठीक है। और आपके जो टोज है, जब तक आप सामने दिखाएंगे एक बार प्रोफाइल के साथ, आपका जो फुट है वो जब स्ट्रेच होगा तो बिल्कुल सीधा होगा। कभी कभी हम बाय मिस्टेक हमारा फुट टेढ़ा स्ट्रेच करते हैं, तो ये गलत बात होती है। ठीक है, इससे आपका करेक्ट पोजीशन नहीं आएगी। तो आपको आपका पैर सीधा रखना है बिल्कुल, और फिर स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो हम दोनों पैर के साथ अपना फुट स्ट्रेच करेंगे पहले, उसके बाद हम जाएंगे इनवर्ड टोज पे। संयुक्ता, साइड प्रोफाइल के साथ दिखाएंगे प्लीज, किस तरीके से हम करेंगे स्ट्रेच। फिर हम उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा हमारे टोज को स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद वापस हम रेलिवे पे आएंगे और डाउन। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज होगा 1 2 3 4, 2 2 3 एंड 4। हम ये दोनों पैर से करेंगे। ठीक है, रेडी जिमनास्ट? 8 काउंट्स राइट लेग से, 8 काउंट लेफ्ट लेग से। हाथ कमर पे रखिए एंड बिगिन। E1 2 3 4, 2 2 3 4, 3 2 3 4, 4 2 3 4, 5 2 3 4 6
2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3 and 4. अदर लेग दूसरे पैर से करेंगे. रेडी एंड बिगिन. E 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4 and 8, 2, 3, 4. वेरी गुड. अब हम अपने टोज को एक्टिवेट करना चाहेंगे. इसके लिए हमें एक नैपकिन की जरूरत है. बच्चों, क्या आपके पास नैपकिन है आपके साइड में? यस, एक नैपकिन लेके आइए प्लीज. वेरी गुड. और उसको नीचे रख दीजिए. नीचे रख दिया आपने अपने नैपकिन्स को? वेरी गुड. अब हम दिखाएंगे आपके टोज किस तरीके से एक्टिवेट हो सकते हैं. आपको आपका पैर टॉवल पे रखना है या नैपकिन पे रखना है, ठीक है? और सिर्फ टोज से आपको आपके नैपकिन को उठाना है. क्या आप उठा सकते हैं? एंड रिलीज. ट्राई करिए, देखिए सिर्फ टोज से आपका नैपकिन उठना चाहिए. ट्राई करिए, उठाइए और छोड़ दीजिए. यस, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे टोज एक्टिवेट हो जाएंगे. टोज के जो भी मसल्स है, छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप होता है ये, लेकिन उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. हम करेंगे 8 काउंट्स विथ राइट लेग एंड 8 काउंट्स विथ लेफ्ट लेग. ठीक है? रेडी एंड स्टार्ट. 1 and down, 2 and down, 3 and down, 4 and down, 5 and down, 6 and down, 7 and down, 8 and down. Very good. दूसरे पैर के साथ. Ready and begin. 1 and down, 2 and down, 3 and down, 4 and down, 5 and down, 6 and down, 7 and down, 8 and down. वेरी गुड. अब हमारे एक्टिवेट हो गए हैं टोज बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा काम करेंगे. ठीक है? तो हम बैठेंगे अभी नीचे, और नीचे बैठने से पहले हम एक पीस ऑफ पेपर लेंगे हमारे साथ. क्या आपके पास एक पेपर का पीस है? संयुक्त दिखा सकते हैं आप हमें पेपर का पीस? यस. और एक पिलो. एक पिलो की जरूरत रहेगी हमें उसके लिए. ठीक है? ये लेके हम नीचे बैठ जाएंगे. वेरी गुड. बैठ जाइए नीचे. अब हम अपनी पिलो को अपने घुटनों के नीचे रखेंगे. पिलो को घुटनों के नीचे रखेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम टोज पे जाते हैं तब हमारे नीज भी बहुत स्ट्रेट होने चाहिए. हम अपने जो टोज जब भी पॉइंट करते हैं तब हमें हमारे घुटनों पे भी ध्यान देना होता है. अगर घुटने बेंड रहेंगे तो टोज पॉइंट करके कोई फायदा नहीं होगा. इसीलिए यू हैव टू पॉइंट योर टोज विथ करेक्ट पोजीशन ऑफ योर नीज. नीज भी सीधे होने चाहिए. तो हम अपने नीज के जो आउटर मसल्स है, साइड सराउंडिंग मसल्स है, उसको हम एक्टिवेट करेंगे. कैसे? संयुक्त, आप अपने हाथ साइड में रखिए प्लीज. आपकी बैक स्ट्रेट है, आपका जो हेड है वो न्यूट्रल पोजीशन पे है, बिल्कुल सीधा. यस. अब हम अपने नीज के मसल्स को टाइट करेंगे इस तरीके से कि आपकी एडिया ऊपर आ जाए. आपके जो हील्स है वो ऊपर आएंगे और आपके घुटनों से मतलब नीज से आपका जो पिलो है वो नीचे प्रेस होगा. ठीक है? रेडी? तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे फॉर 8 काउंट्स. एंड 1 डाउन एंड 2 डाउन एंड 3 डाउन and 4 down and 5
down and 6, down and 7, down and 8, down. Very good. अब हम अपने जो पिलो है वो अपने फुट के सामने रखेंगे. सरिता, can you keep the pillow in front of your feet? Yes, thank you. अब हम कोशिश करेंगे अपने टोज के साथ उस पिलो को टच करने की. लेकिन किस तरीके से टच करेंगे हम? जिस तरीके से हमने अपना टॉवल पकड़ा था, आपको याद है, स्क्रम्बल किया था. तो पहले हम अपनी टोज को स्क्वीज करेंगे, उसके बाद हम फुट स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे और पिलो को टच करने की कोशिश करेंगे. हो रहे हैं आपके टोज स्ट्रेच? यस. फिर हम अपनी उंगलियों को ओपन करेंगे, टोज को ओपन करेंगे एंड हम बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कैसे होगा संयुक्ता, कैन यू शो? 1 and 2, 3 and 4. ठीक है, तो हम करेंगे एक्सरसाइज साथ में. रेडी जिमनास्ट? आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रखिए, हाथ साइड में रखिए, सामने देखिए आप. एंड रेडी, बिगिन. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. अभी आपने तो टो स्ट्रेच करना सीख लिया, लेकिन करेक्ट पोजीशन पे कैसे करेंगे आप? तो आपके पास पेपर है, आपने लेके रखा है ऑलरेडी. उस पेपर को आप अपने पैरों के बीच में पकड़िए ताकि आपके जो पैर है वो एक साथ रहे और ना कि स्प्रेड रहे. और कौन से हिस्से में पकड़ना है आपके पैर, आपका पेपर? संयुक्ता, कैन यू शो प्लीज? यस, आपको आपका पेपर बिल्कुल एडियो के यहाँ पर पकड़ना है ताकि आपके पैर जो है वो जॉइंट रहे. ठीक है, स्प्रेड नहीं होने चाहिए. अगर आपका पेपर नीचे गिर गया एक्सरसाइज करते वक्त, इसका क्या मतलब होगा कि आपने आपके पैरों को जोड़ के नहीं रखा है. हमेशा टोज पॉइंट करते वक्त आपको आपके पैर जोड़ के रखने हैं. ठीक है, रेडी जिमनास्ट? वापस करेंगे ये एक्सरसाइज एंड बिगिन. E1 and up, E2 and up, E3 and up, E4 and up, E5 and up, E6 and up, E7 and up, E8 and up. वेरी गुड. बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से कोशिश की, पेपर को पकड़ के रखा है, इसका मतलब आपने बहुत ही पैर जोड़ के रखे हैं. वेरी गुड जिमनास्ट, वेरी गुड. अब हम करेंगे ऑल्टरनेट. यही एक्सरसाइज ऑल्टरनेट टोज के साथ करेंगे. मतलब एक पैर आपका पॉइंट रहेगा और एक पैर फ्लैट रहेगा. संयुक्ता, क्या आप ये एक्सरसाइज हमें दिखा सकते हैं? रेडी एंड 1, एक पैर पॉइंट हो गया, एक पैर फ्लैट हुआ. E2, E3 and 4. ठीक है, तो ऑल्टरनेट तरीके से हम करेंगे. रेडी जिमनास्ट? एंड बिगिन. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. वेरी गुड, वेरी गुड जिमनास्ट, वेरी गुड. अब हम पेपर साइड में रखेंगे. आई थिंक सो. मैम, क्या आपको संयुक्ता दिख रही है? दिख रही है. ओके 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 ओके, ठीक है. अब हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एंकल रोटेशन. ठीक है, एंकल रोटेशन के साथ हमें इस तरीके से करना है कि आपके पैर, सरिता क्या आप फ्रंट प्रोफाइल के साथ अपने पैर का एंकल रोटेशन दिखा सकती है? थिंक सो.
आपके पैर आपको फ्लैट रखने हैं पहले, उसके बाद आपको आपके पैर साइड में ओपन करने हैं। आई थिंक सो, आई कैन नॉट सी संयुक्ता। हाँ पूजा, मुझे भी नजर नहीं आ रही है संयुक्ता। उसका शायद वीडियो I can't see it. Screen is वीडियो hang. हैंग हुआ है। हाँ, No, screen no hang. ब्लैंक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसी को फिर से रिपीट करवा दीजिए ताकि वो लोग वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, यस। विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन उनके लिए न्यू एक्सरसाइज मुश्किल हो जाएगी पूजा। I will show the demonstration. Don't worry. Gymnast, I can show you. I hope आप मेरे पैरों को देख सकते हैं, ठीक है? Yes, very good. अब आपको जब एंकल रोटेट करने हैं, पहले तो आपको आपके पैर जोड़ के रखने हैं, ठीक है? इसके बाद आपको आपके पैरों को साइड में पुश करना है। मेरे पैर देखिए फ्लैट है और फिर साइड में पुश हो रहे हैं। यहाँ पर आपको आपके जो एरिया है वो जॉइंट रखनी है, साइड में नहीं करनी है, ठीक है? जॉइंट रखनी है और पैरों को नीचे प्रेस करना है। ट्राई करना है कि आपके आउटर ब्लेड्स जमीन को टच हो। इसके बाद आपको राउंड करके पॉइंट करना है और फिर अपने पैरों को जोड़ना है और फिर रिवर्स पोजीशन होगी। पहले ओपन, flat and together point, ठीक है? अभी हम ये एक्सरसाइज करेंगे, आपके हाथ बाजू में रहेंगे, साइड स्ट्रेच्ड, वेरी गुड, एंड बिगिन। 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 6 2 3 4 7 2 3 4 and 8 2 3 and 4. Very good. क्या आपने किया ये एक्सरसाइज? मैम, डिड यू सी? बच्चों ने किया? Yes, Yes, they are doing. वेरी गुड, yes, they are doing. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो होगा टोज को स्ट्रेच करने के लिए। ओके, सो हियर इट इज। आप क्या करेंगे, अपने जो टोज है, ठीक है, आपका ये जो फुट है, ठीक है, आप पहले पास में लेंगे इसको, सिर्फ आपके टोज के ऊपर जो टोज है आगे वाले वही सिर्फ टच होंगे जमीन को। अब आपकी जो सीट है वो टच होगी आपके हील्स को, ठीक है? सीट टच होगी आपके हील्स को, नीचे नहीं, सिर्फ हील को टच होगी। और इससे हम अपनी जो एडी है वो आगे पुश करेंगे और अपना जो घुटना है वो नजदीक लाएंगे शरीर के और होल्ड करेंगे, ठीक है? ध्यान रखिए कि आपके टोज क्रॉस नहीं होने चाहिए, आपके टोज बिल्कुल सीधे होने चाहिए। पुश करिए सामने, यस यस, एंड होल्ड फॉर 20 काउंट्स। रेडी एंड बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Very good. अब आपका टोज बहुत स्ट्रेच हो गया है। आई थिंक इवन आई कैन फील द स्ट्रेच। थोड़ा रिलैक्स करिए इसको, थोड़ा पीछे खींच लीजिए अपने पैर को। यस, पीछे खींचिए। यस, रिलैक्स करिए ताकि आपका जो एंकल का साइड का जो भी पार्ट है वो रिलैक्स हो जाए। यस, वेरी गुड। साइड में
अभी सेम हम दूसरे साइड से भी करेंगे। पहले हम टोज लगाएंगे नीचे, ठीक है, फिर अपनी जो हिप है उसे हम हील के ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम हमारे नीज को चेस्ट तक लाएंगे और सीट से हील को पुश करेंगे आगे, पुश, यस, एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Very good. And down. Relax, relax, relax your feet. Rotate, relax, pull back. Yes. Very good. Pull to the sides. And relax. Very good. अभी आपने एक एक पैर से किया, अभी हम दोनों पैर के साथ भी यही एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैर आप जोड़ के रखेंगे, ठीक है, दोनों पैर जोड़ के रखेंगे। आपकी जो सीट है वो हील्स के ऊपर प्रेस रख के हम अपने टोज को आगे प्रेस करेंगे, ठीक है, आगे प्रेस करेंगे और हील्स जुड़ने चाहिए, ठीक है। एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Very good. And relax. And relax. Relax, relax, relax. Very good, very good, very good. Okay. And I think Sayukta आ गई है. So let's continue with Sayukta. Yes, you can see her. Very good. Thank you, Sayukta, for coming back. Okay, Sayukta, so we have done our stretches by sitting down. अब हम करेंगे, अब हम सीखेंगे कि टोज के ऊपर किस तरीके से हमें खड़े होना है, ठीक है। अब हम जाएंगे कुर्सी के नजदीक। संयुक्ता, कैन यू गो टू द चेयर? यस, वेरी गुड। जिम्नास्ट, अभी आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं आपको किस तरीके से टोज पे खड़े होना है। आप अपने पैरों को जोड़ के रखेंगे, आपके जो घुटने हैं वो बहुत सीधे होंगे। सिर्फ बेंट नीज दिखाइए एक बार, ठीक है, ये बेंट हो गए, लेकिन आपको कैसे रखने हैं घुटने? बिल्कुल सीधे, स्ट्रेच्ड। वेरी गुड। अब आप कोशिश करेंगे आहिस्ते आहिस्ते अपनी एड़ियां ऊपर उठाने की और टोज पे जाने के लिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके जो आपके जो पैर है वो जुड़े रहे। आप यही एक्सरसाइज पेपर के साथ करेंगे। संयुक्ता, पेपर रखिए बीच में, पैरों के बीच में। यस, अगर आपका पेपर आपके पैरों के बीच से नहीं गिरता है, इसका मतलब आप करेक्ट टोज के ऊपर खड़े हो। लेकिन अगर गिर जाएगा तो आपके पैर खुले होंगे, तो ये एक रॉन्ग पोजीशन बन जाएगी आपके टोज की। तो हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए ये। संयुक्ता, पेपर पकड़िए आप अपना फिर से। यस, और हम कोशिश करेंगे कि हम पेपर ना गिराए, अपने पैरों को जोड़ के रखें। रेडी जिम्नास्ट? एंड बिगिन। Slowly, slowly go up,
अप अप, और होल्ड करने की कोशिश करें. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. स्लोली स्लोली नीचे जाइए. वेरी गुड. और एक बार करेंगे हम ये. रेडी एंड अप. स्लोली स्लोली गो अप. पैर जोड़ के रखेंगे आप. यस. एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, and go down slowly. Very good, very good. अब हम इसके बाद हाथ बिना लगाए, मतलब टोज पे जाने के बाद हाथ छोड़ देंगे कुर्सी से और विदाउट हैंड्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? रेडी जिमनास्ट? पहले ऊपर जाते वक्त आप हाथ पकड़ के ऊपर जाएंगे. अब और अब एक एक हाथ छोड़ के हम कोशिश करेंगे कि हम अपने टोज पे बैलेंस बना पाए. आपकी पोजीशन बिल्कुल सीधी होगी. आपके घुटने बेंड नहीं रहेंगे, बिल्कुल सीधे रहेंगे. आपकी पीठ सीधी रहेगी. हाथ साइड में रहेंगे और आप सामने देखेंगे. वेरी गुड. एंड डाउन. और एक बार कोशिश करेंगे हम. रेडी एंड अप. गो अप, गो अप, गो अप. And hold, hold, hold. Try to hold. Very good. Rishika, Pratiksha, very good, very good. हम सभी लोग, आप सभी को ऑब्जर्व करें और आप बहुत अच्छी तरीके से टोज पे खड़े होने की कोशिश करें. अपने घुटने सीधे रखिए बच्चों. देखिए आपके घुटने पे भी ध्यान दीजिए. नीज भी उतने ही स्ट्रेट होने चाहिए. पोस्चर बहुत मायने रखेगा. एंड डाउन. वेरी गुड. अभी हम सेंटर पे आके खड़े रहेंगे, मतलब बिना कुर्सी के ऊपर जाएंगे और बिना कुर्सी के होल्ड करेंगे, बिना कुर्सी से नीचे आएंगे. ठीक है? रेडी जिमनास्ट? पेपर आपके पैरों के बीच में ही रहेगा. रेडी एंड अप. गो अप स्लोली 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 एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Down. Very good, very good, very good, very good. और एक बार. Ready and up. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Very good. And down. ठीक है. अब हम सीख गए हैं कि टोज के ऊपर कैसे खड़े रहते हैं, लेकिन क्या आप चल पाएंगे टोज के ऊपर सही तरीके से? यस. सो लेट्स ट्राई दैट. वी विल ट्राई अ टो वॉक. ठीक है? हम क्या ट्राई करेंगे? टो वॉक करने के लिए. एक कुर्सी बाजू में. हाँ, थैंक यू. ओके. अभी टो वॉक करने से पहले या जिम्नास्टिक्स की कोई भी स्किल करने से पहले हम स्टार्ट पोजीशन लेंगे. तो स्टार्ट पोजीशन के लिए हमें हमारे टोज के ऊपर ही खड़े रह के स्टार्ट करना है. हमारे पैर जुड़े होने चाहिए. नीज स्ट्रेट. यस. जैसे हमने सीखा टोज के ऊपर कैसे खड़े रहते हैं, सेम दिस इज द पोजीशन ऑफ योर स्टार्ट ऑफ एनी एलिमेंट. इसके बाद हम स्लोली एक पैर आगे पॉइंट करके रखेंगे, फिर दूसरा पैर, और पूरे टो वॉक में हम सिर्फ टोज के ऊपर ही चलेंगे. So, शो द फाइनल पोजीशन डार्लिंग प्लीज. यस. ये स्टार्ट होगा, फिर आपका वॉक होगा और उसके बाद आपका एंड. आपका एंड भी आप पैर जोड़ के ही करेंगे और बिल्कुल सामने देखेंगे. किसी भी एलिमेंट स्किल जिम्नास्टिक्स में करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो स्टार्ट पोजीशन और हमारी एंड पोजीशन एक फिक्स हो. ठीक है? अगर आप ये फिक्स नहीं करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है हर एलिमेंट से पहले वो नहीं बनेगा और एक फिनिशिंग नहीं आएगी एट द एंड.
तो पहले हमें खड़े रहना है. रेडी जिम्नास्ट? रेडी? हाथ साइड में करके खड़े रहिए. टोज के ऊपर जाइए, पैर जोड़ के रखिए. एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Finish position and down. वापस एक बार करेंगे toe walk and up. Begin. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Finish position with legs together. पैर जोड़ के and down. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थोड़े से स्ट्रेच करेंगे हम अपने काफ्स को, क्योंकि हमने बहुत टो वर्क कर लिया है. तो स्ट्रेचिंग ऑफ द काफ. यस. किस तरीके से करेंगे? एक दोनों पैर हम खोलेंगे आमने सामने, और आगे का पैर बेंड होगा और पीछे का पैर बिल्कुल सीधा होगा. सिर्फ आपका पैर आउटसाइड हो गया, आप सीधा रखिए अपने पीछे का पैर. यस. और ट्राई कीजिए आपकी जो एडी है वो नीचे लगाने की, ऊपर नहीं उठाएंगे आप. तो इससे क्या होगा, आपका जो पीछे का पैर का जो काफ है वो स्ट्रेच हो जाएगा. यस, स्ट्रेच हो जाएगा. ओके. अब इसके बाद हम करेंगे संयुक्ता, इसके बाद हम करेंगे टोस पे हम किस तरीके से टर्न हो सकते हैं. संयुक्ता आप खड़े रहिए, सामने देख के, मेरे सामने देख के खड़े रहिए. ठीक है. हाथ साइड में करिए, टोस पे जाइए, और एक जगह पर आपको दोनों पैर से स्लोली स्लोली उठा के टर्न करना है. घूमिए घूमिए घूमिए. यस 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 यस. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड टुगेदर. और सेम दूसरे साइड से भी. अप, पॉइंट 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 एंड फिनिश. वेरी गुड. ठीक है जिम्नास्ट, लेट्स स्टार्ट. स्टैंड ऑन योर एलिवेज. स्टैंड ऑन योर एलिवेज. आपके पैर जुड़े हैं, आपके हील्स टुगेदर है. वेरी गुड. एंड स्टार्ट टर्निंग. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. And other side. Up and start. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. वेरी गुड, वेरी गुड. अब जैसे हमने टोस के स्ट्रेचेस किए, टोस की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हो गई है, लेकिन हमें फुट में हमारी स्ट्रेंथ किस तरीके से डेवलप करेंगे? क्योंकि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके हमें हमारे मसल्स प्रिपेयर करने हैं. सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी से या सिर्फ स्ट्रेंथ से हमें हमारे टोज या कोई भी हमारा जो मसल है वो डेवलप नहीं होगा. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि हम हमारे बॉडी पार्ट्स को डेवलप करें. तो जिस तरीके से हमने हमारे टोज के ऊपर खड़ा रहना सीखा है, सेम उसी तरीके से जब हम एक्स्ट्रा रिपीटेशंस करेंगे, सिर्फ तक काफ रेजेस करेंगे, एक्स्ट्रा रिपीटेशंस करेंगे, तो हमारे काफ्स में स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी. तो हम एक्सरसाइज करेंगे फॉर स्ट्रेंथ, दैट इज काफ रेजेस. ठीक है. पैर जोड़ के रखने हैं हमें और रिपीटेशंस करने हैं 10 काउंट्स के लिए. रेडी एंड स्टार्ट. E1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. वेरी गुड, वेरी गुड. आपके काफ्स में पेन हो रहा है? यस. स्ट्रेच करेंगे उसको, काफ्स को स्ट्रेच करेंगे. यस यस यस. वेरी गुड, वेरी गुड. और एक सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ एक सेट से तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी नहीं. हम 3 सेट्स करेंगे. ठीक है. तो अभी सेकंड सेट होगा. रेडी, पोजीशन एंड स्टार्ट. E1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10. Very good, very good. And relax, stretch and stretch. Good. And begin again the third set. Up and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. वेरी गुड. अभी हमारा सेकंड एक्सरसाइज जो होगा वो इस तरीके से हम करेंगे. हम टोस पे जाएंगे आगे. संयुक्ता, टोस पे जाइए आप. और हम कोशिश करेंगे नीचे जाके ऊपर उठने की विद द हेल्प ऑफ चेयर. नीचे जाएंगे, आपके एरिया बहुत ऊपर होंगी, नीचे नहीं आएंगी. ठीक है. एंड अप. यस, क्योंकि हमारे पूरे पैर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ओके, टोस पे खड़े रहने के लिए हमारे पूरे पैर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. रेडी? तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे 8 बार. एंड अप. आपके पैर जोड़ के रखने हैं, हील्स ऊपर उठा के रखनी है एरिया आपकी. एंड सिट डाउन स्लोली. आपके नीज टुगेदर, नीज को जोड़ के रखिए, घुटनों को जोड़ के रखिए. एंड अप. And down and up. And 3 and up. And 4 and up. And 5 and up. And 6 and up. And 7 and up. And 8 and up. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. रिलैक्स संयुक्ता. अब आज का पूरा सेशन हमारा टोज का यहाँ पर कंप्लीट होता है. हमने पूरी तरीके से सीखा है कि हम किस तरीके से टोज पे खड़े हो सकते हैं, टोज की फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार करेंगे, टोज की स्ट्रेंथ किस प्रकार बढ़ाएंगे, किस तरीके से वॉक होगा, किस तरीके से टर्न होगा. तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है टोज के लिए. इसके आगे भी हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइजेस है टोज के लिए, लेकिन पहले हम अपने टोज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने एंकल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और उसके बाद हम आपके जो आगे के एक्सरसाइजेस है टोज के वो सीखेंगे कुछ सेशंस के बाद. ओके. अब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट संयुक्ता कि हमारा कूल डाउन सेशन करें. जिम्नास्ट, आपको अभी कूल डाउन करना है क्योंकि आपने बॉडी वार्म की, उसके बाद आपने टोस किया. अब कूल डाउन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. शरीर के जितने भी हिस्सों को हमने गर्म किया है, हमने वर्कआउट किया है, उन सारे हिस्सों को अभी हमें शांत करना है, बैक टू नॉर्मल आना है. हमारे जो एक्सरसाइज, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज से जो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बिल्टअप हुआ है, वो हमें कूल डाउन से ब्रेक करना है, रिमूव करना है, ताकि नेक्स्ट डे आपका शरीर डर ना हो. Stretch, stretch, stretch. Yes. Stretch. Loosen your arms. Loosen your arms. Loosen your legs. Stretch your calf. हमने काफ का बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस किए हैं आज, एंकल्स, लेग्स के. वेरी गुड. Sit down and bend forward. Yes. Sleep. Bend your legs. Yes. And another leg. Very good, very good. And turn on your back. Spread your legs. आपके हाथ बाजू में रखिए
और आपकी गर्दन लेफ्ट साइड पे टर्न करिए, आंखें बंद कर दीजिए और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है, हमें ब्रीदिंग के ऊपर बहुत कंसंट्रेट करना है, सो जाना है हमें। और हम जिस तरीके से हमारी इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग पोजीशंस पे ध्यान देना है हमें। हमारे पेट के ऊपर से हमें ये समझ में आएगा, जब हम इनहेल करते हैं तब हमारा पेट बाहर आता है, एक्सहेल करते हैं मुंह से तो हमारा पेट अंदर चला जाता है। तो वी हैव टू कीप अटेंशन। ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सही तरीके से रिलैक्सेशन करें। ब्रीद इन and out, breathe in and out, breathe in and out, breathe in and out. Very good. अब हम आहिस्ते आहिस्ते हमारी आंखें खोलेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे टर्न होंगे। ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड पे टर्न होना है हमें, और फिर आहिस्ते आहिस्ते ऊपर उठेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा सेशन हुआ। आई थिंक जिम्नास्ट, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के लिए हम आंसर प्रिपेयर करें और मे बी नेक्स्ट सेशन में हम आपको दें। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जिम्नास्ट और पेरेंट्स, प्लीज पुट इट इन द चैट। तब तक मैं आपको हमारे नेक्स्ट सेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। हमारा नेक्स्ट सेशन होगा सैटरडे को मॉर्निंग 8 AM to 9 AM। नेक्स्ट सेशन में भी हम शुरुआत करेंगे वार्म अप से, फिर हम टोज एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे बॉडी वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिदमिक जिम्नास्टिक्स में। आपकी पूरी बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, आपकी पूरी बॉडी किस तरीके से मोड़ सकते हो, आप किस तरीके से उसको एक्टिव बना सकते हो, वो सारी चीजें आपको हम नेक्स्ट सेशन में सिखाएंगे। कल्पना मैम, क्या आप बात करेंगे थोड़ी देर बच्चों से कि किस तरह हुआ हमारा ये सेशन? क्या आप एक्सपर्ट्स कमेंट दे सकते हैं इसके लिए? कल्पना मैम, आई थिंक शी इज नॉट देयर। जसबीर मैम? हेलो। यस मैम, क्या आप बताएंगे किस तरीके से हुआ आज का सेशन और बच्चों ने किस तरीके से किया? Hello, can you hear हाँ, me? पूजा आज Yes, ma'am. Yes. Yes. यस मैम। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। किसको बोल रहे हो आप? आपको मैडम, आपको बोल रहा हूँ। यू स्पीक। जस्ट ओके एक्सपर्ट के व्यू लिया कर अपने पूजा। ओके पूजा, आपने ma'am. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। Thank और you, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे से कर भी पा रहे थे, पर कुछ बच्चे अभी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। पर इट्स द बिगिनिंग, होप दे विल टेक अप प्रॉपरली, या धीरे धीरे सीख जाएंगे। और जो कुछ एक पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, कुछ पेरेंट्स जब बीच में आते हैं प्रॉपरली ड्रेस होके नहीं आते हैं, टॉवल ओढ़ के, शर्ट नहीं है, सो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। दिस इज ए वेरी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ ये प्रोग्राम हो रहे हैं गवर्नमेंट लेवल में। सो प्रॉपर ड्रेस में आए, कोचेस भी, पेरेंट्स भी। और बच्चों से यही है कि कुछ बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे अभी भी, कुछ बच्चे बहुत केयरफुली कर रहे, तो वो थोड़ा सा और ध्यान दे और वो अच्छी तरह परफॉर्म करके नेक्स्ट टाइम। And I hope they will be able to do, क्योंकि this is the first time they will take little time to adjust themselves, है ना? थोड़ा टाइम लगेगा उनको एडजस्ट होने में, तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो और यही बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ये ध्यान में रख के करना। जस्ट करना नहीं है, उन सब जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया उन सब इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरह सुने, फॉलो करे और करने की कोशिश करें। एक टाइम में नहीं होगा, धीरे धीरे वो हो जाएंगे, सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू कल्पना मैम। जसबीर मैम?
हाँ, hello. Yes, ma'am. Yes. Can you hear me? Yes, ma'am. We can hear you. ओके। और कल पूजा, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और मैंने आज इसमें कुछ बच्चों को देखा जो अभी भी सीरियस नहीं थे, जैसा कि कल्पना मैम ने बताया है। तो मे बी इट्स अभी आगे आने वाले प्रोग्राम में हमारी उन बच्चों को हम आगे और ला सकेंगे। और बच्चों, आपसे मेरा एक ही कहना है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए आप एक डायरी मेंटेन करें, और उस जो भी एक्सरसाइज आपको पूजा मैम ने जितना भी समय बताया है कि इतने समय में इतने सेकंड इतने काउंट में करना है, आप उसको लिखिए और रिपीट कीजिए अपने घर में, क्योंकि रिदमिक में और टाइम की ज़रूरत है। और आपको सही एक्सरसाइज का सही तरीका बताया जा रहा है, तो आप उसे पहले देखें और उसको साथ साथ में करें। और अपना जो वीडियो है उसमें मैंने देखा आज कुछ बच्चे आज वीडियो में नहीं थे और उनका नेम्स भी नहीं लिखा था। सो मैंने आज बहुत सारे बच्चों को देखा जो थोड़ा सा, और उनके पेरेंट्स भी इस तरफ ध्यान दें। उनमें जो मैंने कुछ बच्चों के नाम ले रही हूँ, तो उसमें सिया, कुशल, समीरा, सैगल, ईश्वनी, अन्वी, मिधा, मेघम, सैमुअल, हर्षिका, मिधल, अगय, बहुत सारे बच्चे थे जो धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रहे थे और उनका बॉडी पोस्चर भी ठीक नहीं था। तो इसमें मैं कहूँगी कि कुछ पेरेंट्स उस बच्चों का जो बहुत छोटे हैं उनका ध्यान रखें, और जो आपको समझ आता है आप उनको साथ साथ में बताएं। पूजा, आपने बहुत अच्छे तरीके से कराया, इट्स अ ग्रेट। मैं इसके लिए साई और पठानिया सर को थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो सर, ये रिदमिक जिम्नास्टिक जर्नी में हमारे इंडिया को आगे डेवलप करेगा, ऐसी मेरी होप है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। हमारा सेकंड सेशन है, कोई बात नहीं, कोई बच्चों ने नहीं किया तो हम इसे प्रैक्टिस करेंगे और हमारे एक्सपर्ट को नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों? यस। everyone will practice at their home. यस। Everyone will become the best. यस। ठीक है, वेरी गुड। और तो पूजा, इनको थोड़ा सा, पूजा हेलो, पूजा, इनको थोड़ा सा डाइट और एग्जीक्यूशन के बारे में भी आप जरूर बताइए कि करने से पहले क्या खाना है और करने से बाद, क्योंकि ये छोटे बच्चे, इनको हमें हर तरह से गाइड करना पड़ेगा। ठीक है मैम, ठीक है मैम। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी उनको समझा देंगे कि किस तरीके से आपको करना है डाइट प्लान। और अभी के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए आपको जो प्रॉप्स लगेंगे वो भी आपको एक चेयर लगेगी, नैपकिन लगेगा और एक पीस ऑफ पेपर लगेगा। ठीक है? तो जिम्नास्ट, सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। पूजा, लेट मी स्पीक समथिंग। नंबर पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। This is a grassroots level coaching and education. So we are not push the student to do maximum. This yes sir, session must be a 40 to 1 hour, 40 minutes to 1 hour, not more than that. It was already discussed in higher meetings. So it should not be a lengthy. This is a grassroots level. We should not put a more burden. हमको बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है. Let them learn something slowly. कुछ बच्चे करते हैं because we are just giving feeling to them. Number 2, we are going to start. सभी बच्चों के लिए है. If they want, they can participate. We are going to start developmental rhythmic gymnastics. ACEP means athlete coaching and education program from 8 to onwards. 4 o'clock for developmental group. बड़े बच्चों के लिए हम 8 तारीख से शाम को 4 बजे से रिदमिक में शुरू करने जा रहे हैं. और ये बच्चे भी अगर चाहें तो they can also participate. There is a no bar. किसी के ऊपर बाहर नहीं है. Number 3, Sunday को we are going to have a yoga for common artistic as well as this one rhythmic gymnastics. दोनों के लिए 8 बजे मॉर्निंग हम योगा का एक प्रोग्राम रखेंगे. So all participants must join and hope you will enjoy your yoga also. Best of luck. Thank you. Good day. Okay, thank you sir. Thank you very much. Thank you all participants.
हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में, हमारे सैटरडे को होगा मॉर्निंग 8 AM to 9 AM. So see you soon, gymnasts. Bye bye.